sir. Yes, sir. Okay, good morning everyone. How are you all? Good morning, sir. We are fine, sir. And what about you? Yes, sir. Good morning, sir. You are also fine. Thank you. But in today's math session, we are going to start the new exercise. We have to start the new exercise and we have to study the new concept, like how to represent the data in chart format, graph format. In exercise 3.1 and 3.2, we learned that how we can use table to represent or collect or observe the data. In today's session, we will be learning that how we can collect data, how we can observe data, even how we can put the data in the bar graph. There are many other kinds of graph is also there, but in your 7th maths book there is a bar graph. So we will be studying more about the bar graph and how we have to put the data and how we have to calculate or observe the data through the bar graph. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So today, rather than coming on the green board, today I'm going to take this session in another way. I will be using the Excel, MS Excel, to represent all those things, problems. Because if I would be using a green board, then it would be taking the time. Let's say if there are some numbers, and what we have to learn how to represent these numbers on the bar graph. So we can do in Excel, and I will be showing you all. But so you all have to do in your maths notebook, not Excel. Excel में भी आप कंप्यूटर्स का आपको कुछ करना है, then also you can. तो आप बार ग्राफ में कैसे डेटा रखेंगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारी चीजें सीखेंगे. देन इट इज ऑन यू दैट वेदर यू वांट टू ऑब्जर्व या कैलकुलेट या पुट द डेटा इन द एमएस एक्सेल. अगर इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपको डेटा रखना है, अगर आपको मैनुअली करना है, देन यू हैव टू डू इन योर मैथ्स नोटबुक. Obviously you all are having your only books and copies, then you have to put all the data in on manual basis. What you have to do, I will be discussing all those things here. So as of now, before moving ahead, I will be sharing the chapter, whatever we have to study today. This is the chapter. सभी के पास बुक्स है ना? Everybody are having. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We also will be reading books during the session, so you all keep your notes with you all. So already we have completed these things. There is another. After the 3.1 already we have done. 3.2 already we have done. Mean median mode निकालना सभी को आ गया है ना? Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम हो तो आप रिकॉर्डिंग जो लाइव क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो है उसको देखें और आप उसको सीखें. मीन मीडियन all were very important topic. ऐसा ना हो कि आप उसमें मिस करें. इस क्वेश्चन निश्चित ही आना है आपके एग्जामिनेशन में. After 3.2, today we have to discuss use of bar graphs with a different purpose or choosing a skill. अब बार ग्राफ होता क्या है? If I tell about the bar graph, how you have to represent, how you have to draw. Let's take another page, slides. Here I'm going to draw a graph. Bar graph, there is a two axis. आपका ये वर्टिकल फॉर्मेट में होगा, अनदर विल बी इन हॉरिजॉन्टल वे. एंड दिस विल बी द एक्सेस. आप इसको एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस भी बोल सकते हैं. नाउ यू ऑल नीड टू रिप्रेजेंट द डेटा on this axis. First of all, let me tell you all about more about the bar graph. Let me show you the bar graph. Then I will be making here through this
Beta, this is a bar graph. There is a image. Yes, sir. There is a picture. This is also one of the picture. Also one of the picture. And this is called the bar graph. These are the axis and these are the axis. Up there is some scaling. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. These scales can be done as per the situation, as per the conditions, whatever the required as per the questions. How we have to decide that what scaling should be done, I will be telling you. There is the things what you are going to assess, what you are talking about. Let's say, take one of the example. With the help of this example, we would be trying to understand the graph. Thereafter, also we would be making graph for many questions. Can anyone read this example number 8? Muskan, read. Yes, sir. Yes, sir. Muskan, read this example, beta. 200 students of 6th and 7th classes were asked to name their favorite colors so as to decide upon what should be the color of their school building. The results are shown in the following table. Represent the given data on a bar graph. Okay. 200 students. Let's say that there is a school, there is around 200 students of 6th and 7th classes. आप लोग भी हो सकते हैं, आप ही का स्कूल मान लीजिए हो सकता है. इसमें क्या हुआ? 200 students of classes were asked to name their favorite color. आप लोग भी अपने favorite color, अगर मैं अभी पूछ लूँ out of 10 या 20 जो भी आप हैं, अगर मैं favorite color पूछूं तो हो सकता है different colors नेम आए. कोई रेड बोल सकता है, कोई ग्रीन बोल सकता है, हो सकता है 2 से ज्यादा लोग ब्लू बोल दें या येलो बोल दें. कई लोगों का कलर मैच भी करेगा. तो क्या हुआ इसमें आउट ऑफ 200 लोगों ने क्लास 6 7 के 200 लोगों ने अपने फेवरेट कलर के नाम लिए और जो भी फेवरेट कलर ज्यादा हुआ उस कलर में स्कूल के बिल्डिंग कलर किया जाना है या जो भी पर्पस के लिए यूज करना हो. देन हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस डेटा दैट की हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैविंग द which color is the favorite by how many students, which color is favorite by how many students, how we would be getting this one. सभी बच्चों से पूछा गया, लोगों ने बताया. Then what was the information was collected? 43 number of students is having the favorite color as red. 19 students favorite color is green. Blue color is the favorite color of 55 students. Yellow color is the favorite color of 49. 34 students likes the orange color. So these are the data. बेटा अब यहाँ पे चीजें या तो आपको जैसे यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम की तरह लिख करके बता दिया जाए कि जैसे मैंने बोला कि आउट ऑफ 243 स्टूडेंट्स लाइक द रेड कलर, 19 स्टूडेंट्स ग्रीन कलर, 55 ब्लू कलर, 49 येलो कलर. वो तो वर्ड प्रॉब्लम हो गया. फिर उसके बाद ही क्वेश्चन पूछा जाए विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड कलर एंड विच इज द लीस्ट प्रेफर्ड, तब तो आप बता ले जाएंगे. बट वो आपका वर्ड प्रॉब्लम में ना रख करके हियर द डेटा हैज बीन mentioned in the form of table के थ्रू यहाँ पे मेंशन किया गया. टैबुलर फॉर्म में कह सकते हैं. we can say that it has been mentioned here as per the tabular form. टेबल के थ्रू हम निकाल सकते हैं कि which is the least preferred color and which is the most preferred color. निकाल सकते हैं कि नहीं? बार ग्राफ की तो जरूरत है नहीं यहाँ पे. No, sir. Yes, sir. हम लोग निकाल तो सकते हैं ना. Yes, sir. अभी वो क्या आ रहा है आपके एग्जांपल में देयर इज अ टैबुलर फॉर्म में डेटा है, आप इससे निकाल सकते हैं. बट अभी आपको सिखाया जाने की कोशिश किया जा रहा है कि इस टैबुलर फॉर्म को, इस टेबल को आप बार ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे उस डेटा को पढ़ेंगे. व्हेनेवर आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, whenever you will be growing, whenever you will be going in the higher classes, you will be getting the data in tabular format or in chart format या graph format या word format, ये तीनों format में नहीं मिला रहेगा. So let's say if you are getting data in the graph format, then how will you decide?
हाउ विल यू कलेक्ट द डेटा? अगर आपको ग्राफ वाले फॉर्मेट में आपको डेटा मिल जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने बच्चों ने कलर, कौन सा हाईएस्ट प्रेफर्ड कलर है, कौन सा लीस्ट प्रेफर्ड कलर है, या कौन सा कलर कितने बच्चों ने लाइक किया? अगर ये टेबल ना होता, सिर्फ इसको देख करके बताना होता, तो क्या करते? और यही नहीं, अगर आपको इस तरीके से डेटा मिल जाए और आपको इस तरह का ग्राफ बनाना हो, देन हाउ विल यू ड्रॉ, हाउ विल यू मेक दिस काइंड ऑफ ग्राफ? ये दो चीजें यहाँ पे सीखी जानी है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखते हैं। अब ये टेबुलर फॉर्मेट के बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है। आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में शायद एक क्वेश्चन था, आपने किया भी है, कुछ लोगों ने प्रॉपर्ली नहीं कर पाए थे, बट ये टेबुलर फॉर्मेट यही बोला जाता है, इसी को आपको टेबल्स के फॉर्मेट में एक तरीके से। ऑन वेबसाइट देयर आर डिफरेंट अदर मोड ऑफ द there are different modes, there are other different modes how to represent the data in the tabular format, but actually you need to represent the data in this tabular format में आपके लेवल पे आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। तो बार ग्राफ में क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? द थिंग इज दिस, हाँ ये टैबुलर फॉर्मेट में डेटा दिया है। लेट मी रीड ऑल द क्वेश्चंस आल्सो। व्हिच इज द मोस्ट प्रेफर्ड कलर एंड व्हिच इज द लीस्ट प्रेफर्ड कलर? मोस्ट प्रेफर्ड कलर मींस क्या होता है? प्रेफर्ड कलर ज्यादा हो, क्या होता है? सबसे कम। लीस्ट मींस सबसे कम, मोस्ट मींस सबसे ज्यादा, मोस्ट में ज्यादा नहीं, मोस्ट में सबसे ज्यादा, लीस्ट में सबसे कम। The second question is how many colors are there in all? What are they? How many colors are there in all? You can see here how many colors are there. 5. Which is the least color? Which is the least preferred color? Green. green, And which is the most preferred color? the blue Blue. color. Okay. इस टेबुलर फॉर्मेट में जो डेटा है इसको तो आपने देख करके बता दिया। बार ग्राफ में क्या करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ पे मैंने बताया था कि देयर आर टू एक्सिस, दिस इज वन ऑफ द एक्सिस एंड दिस इज द एक्सिस। सो यू कैन, एक आपका वर्टिकल लाइन होगा, फिर इसको काटते हुए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। आपका जो ये पार्ट होगा एक तरीके से, ये सेंटर पॉइंट एक तरीके से मान लिया जाएगा, जीरो एक्सिस माना जाएगा। यहाँ से आप अपना स्केलिंग करेंगे, कोई स्केलिंग आपने रेड ग्रीन ब्लू आपने नीचे यहाँ पे किया है, आप ऊपर भी कर सकते हैं। आपका कुछ भी, आप इस बार ग्राफ को, अभी ये एक तरीके से कॉलम फॉर्मेट किया जाता है, इस बार ग्राफ को आप ऐसे ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे हॉरिजॉन्टल व्यू में भी आप दिखा सकते थे। बोथ आर करेक्ट? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. आपको क्या दिया है? नंबर ऑफ कलर्स दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। देयर आर टू थिंग्स। अब जो ये स्केलिंग, जितने नंबर ऑफ कलर्स हैं, लेट्स से कि देयर आर 5 कलर्स, तो 5 ग्राफ, तो ये 5 बार्स विल बी देयर। ये बार्स है ना, जो आपका स्क्वायर शेप है, Yes, sir. कॉल्ड बार। बार, हाउ मेनी बार विल बी देयर? दिस इज on the number of students, number of the objects. So how many objects are there? 5. 5. 5. That means ki number of objects will be deciding that ki how many number of objects will be deciding the number of bar. If there is a 5 objects, 5 लोग हैं, 5 चीजें हैं, 5 places है, कुछ भी, then it will be deciding that ki how many bars will be there. 1 2 3 4 5. एंड इट इज ऑल्सो देयर। ये डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन, अगर अलग अलग सिचुएशन है, मैं आपका मान लीजिए अगर ऐसा बोल दिया जाता है किसी स्कूल के, मतलब किसी आपका गवर्नमेंट स्कूल है आपका रामपुर का, उनके वहाँ के बच्चों का ये डेटा है, और मुंबई के एक कोई स्कूल है, वहाँ के बच्चों का कोई अलग डेटा है। दोनों बच्चों में क्या डिफरेंसेस होंगे, क्या कंपेरिजन होंगे, तो उसके लिए आप चाहे तो आप इसी पे ही आप बना सकते हैं दूसरा ग्राफ, या अलग से ग्राफ बना सकते हैं। फिलहाल अभी आप सिंगल ग्राफ देखिए कैसे बनाया जाता है। तो ये बार आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी नंबर है, डिपेंड करता है। एंड दिस स्केलिंग वुड बी डिपेंडिंग दैट की दिस स्केल विल बी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द नंबर। दिस स्केल विल बी डिपेंडेंट
on the value of the numbers. Let's say कि these are the Numbers. students 43, 19, 55 and 14 and 34. What you have to do? जो भी आपका highest value हो, whatever the highest value is there, उससे ज्यादा का ही scaling आपको करना है. So which is the biggest value in this table? 55. 55. That means ये scaling आपको जो ये वाली स्केल है, अगर आप इस तरीके से कॉलम के थ्रू बनाते हैं, कॉलम के, तो आपका ये स्केलिंग हो जाएगा, इधर आपका नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा. तो स्केलिंग आप क्या करेंगे, मोर देन 55 इट शुड बी देयर. आप इसको 60 नहीं 70 भी कर सकते थे, 80 भी कर सकते थे, इवन 120 या आप 100 200 चाहे जितना भी कर सकते थे. कितना भी बड़ा इसको ग्राफ बना देते आप. Yes, sir. लेकिन अब स्केलिंग आपको सब मिला के 55 आपको शो करना है, तो 55 से ज्यादा ही होना चाहिए. तो बहुत ज्यादा लंबा करने के लिए आपको नंबर ऑफ पेज में स्पेस भी ज्यादा चाहिए. तो व्हाट यू कैन डू, Yes, sir. 60 इज इनफ. अब सबसे ऊपर सबसे पहले 60 आपने लिख दिया, 55 से ऊपर जो भी आपका राउंड फिगर है वो लिखा जाता है फिलहाल. ओके, अगर 58 भी होता, Yes, sir. 60 ही लिखते. अगर 60 होता तो 60 से ज्यादा मुझे करना है, तो मैं 65 या 70 करता, है कि नहीं. Yes, sir. Yes, sir. अब जो भी लेट्स से कि यहाँ पे कर दिया गया, अब 60 को ये जो भी लेंथ आपने बनाया है वाले एक्सिस पे, जो भी आपने इतना बड़ा लेंथ है, अब इसको आप 0 से लेके 60 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. अब 0 से 60 को आप अगर इक्वली डिवाइड करेंगे, अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 30 होगा. 4 पार्ट में करें तो 50 will be the part. One part will be of 15 sorry not 50 15. अगर इसी को आप 6 पार्ट में करें, 1 2 3 4 5 6 to 8 सेंटीमीटर्स का है. आप इसको और भी छोटा कर सकते थे, आप चाहते तो 5 10 या 15 भी लिख देते, 25 भी लिख देते. आप ये ऐसे भी करते तो भी सही रहेगा. लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसको अपनी सुविधा अनुसार, अपनी कन्वीनियंस के अनुसार आपको ये स्केलिंग करना होता है. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें अगर 5 10 15 अगर कर देंगे तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा. होता क्या है, पहले ही आपने स्केलिंग कर दिया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर दिया. अब बात करते हैं रेड कलर की. ये रेड कलर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हु लाइक द रेड कलर? 43. तो 43. यहाँ पे आपने लिखा ऑब्जेक्ट, तो ये रेड कलर का ऑब्जेक्ट 43 तक जाना चाहिए. इस बार विल बी going up to 43. तो 43 where will be 43 lie? Between 40 and 50. 50. 40 and 50 में लाई करेगा, लैंड करेगा ना. तो 40. Yes, sir. Yes, sir. ये बार आपका यहाँ तक गया. If I talk about the green color is the favorite color of 19 students. 19. It is almost, ऐसा लग रहा है 20 के करीब है, but actually में it's 19. ये बार, Yes, sir. ये जो चार्ट है, जो ये ग्राफ है, अगर ये थोड़ा सा और जूम होगा तो थोड़ा सा और क्लियर होगा. तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एस्टिमेट भी करना पड़ेगा, अंदाजा भी लगाना पड़ेगा. क्लियर नहीं हो पाता कई बार. डेटा 20 को आप हो सकता है, इसको अगर आपको देखना होता, आपको यहाँ पे डेटा ना दिया गया होता, देन हो सकता है कि आप यहाँ पे 20 सीधा मान लिए होते. ऐसा हो सकता था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 55 येलो. Yes, sir. रेड कलर आपका 34. तो 34 कहाँ पे लाई करता है? यहाँ 30 बिटवीन 40 एंड 30. तो ये देखो 30 and 40. तो हाउ यू हैव what the length of will be the bar? What will be the length of the bar? बार की लेंथ क्या होगी? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या जो भी आपको वैल्यू दी गई है, और एज पर द स्केल ये जो बार का लेंथ है, ये आपका जो स्केलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि स्केलिंग कैसे किया गया है. आपका स्केलिंग अगर और बड़ा यहाँ तक किया गया होता है और इतना बड़ा होता है कि नहीं? Yes, sir. तो अगर आपने यहाँ पे Yes, sir. लिखा होता है 10, ये 5 लिखा होता है, ये 10 15 20 25 30, तब 35 40 45 50 55 60 यहाँ तक आ जाता. और फिर आपको 55 अगर रिप्रेजेंट करना होता तो ये ना आपको इतना ऊपर आता. तो डिपेंड्स करता है कि आपने स्केलिंग कैसे किया है. जो आपका इस बार का लेंथ है वो डिपेंड करता है कि हाउ यू हैव डन द स्केलिंग ऑफ द
of the data. Okay. Yes, sir. Yes, sir. तो ये सारी चीजें बार है, फिर मतलब दिस इज ऑल अबाउट द बार ग्राफ, हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट द, देयर इज वन मोर थिंग, अगर हम इसको रीड करें तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, ये भी मैंने बता दिया। इसकी लेंथ जो है वो स्केल के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ से आप बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड कलर, तो विच इज द हाईएस्ट लेंथ, विच इज द टैलेस्ट बार, Sir, blue. Blue. blue is the highest preferred, blue is the most preferred color. One more thing, यहाँ पे दिया गया है 200 स्टूडेंट्स ऑफ 6 and 7, 200 स्टूडेंट्स यहाँ पे, लेकिन डेटा जो लिखा गया है 200, 1 यूनिट विल बी द 10 स्टूडेंट्स। एक तरीके से आप यहाँ पे जब 43 की बात कर रहे हैं, आपने यहाँ पे किया ना 0 से लेकर 10, 1 unit equals to 10. So this is how you have to represent the bar graph, and in the same way we have to solve the many questions, many other examples also we will be solving, और कई सारे एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे देन आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी होगी सारे कॉन्सेप्ट। आपको इन सब सारी चीजें को बेटा ऊपर से अपना से वॉइस आ रहा है, टेक्निकल वॉइस कोई प्रॉब्लम है, हमिंग की साउंड है, प्लीज बंद करें। आपको इसको बनाया कैसे कि आप सॉल्यूशन भी एक बार पढ़ लेते हैं। स्टार्ट द स्केल एट 0, द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द डेटा इज 55, द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द डेटा इज 55 ना। Yes, sir. So end the scale at a value greater than 55, जो मैंने बताया वही सारी चीजें हैं। फिलहाल leaving all those things, coming on the next example. There is another. Yes, sir. Following data gives total marks out of 600. Out of 600, ये जो डेटा है ये out of 600 का डेटा बता रहा है। Obtained by 6 children of particular class. Represent the data on a bar graph. अब यहाँ पे मान लीजिए आप ही लोग हैं, यहाँ पे आप लोग का भी नाम हो सकता था, आप लोग का भी नाम हो सकता था, आप लोगों में कौन हाईएस्ट पाया, कौन लोएस्ट पाया, ये और दोस थिंग्स डिपेंड। अब इसको अगर बार ग्राफ में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, देन व्हाट यू कैन डू। सबसे पहले लेट्स से कि आई एम ओपनिंग द व्हाइट बोर्ड नाउ, दिस हैज बीन, अभी मैंने दोनों एक्सेस बना लिया है। I have made both the axes, and now we have to put all the data. Now, what is the maximum? Beta, now you all need to look into your books and open the page number 69 so that you can look the data, you can see the data and tell me. Yes, sir. 69, the example number 9. We have to put these data, whatever the data is there in the table, we have to put it on this graph. On this chart. So let's say that this axis will be representing the marks. अभी यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा है, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ marks. And this axis will be representing the name of the students. ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? Okay. Yes, sir. That means कि marks will be represented on this axis and students will be showing on this axis. All right. Yes, sir. Yes, sir. Now, if I talk about the marks, then what is the greatest? What is the biggest value of in the table? Sir, 540. 540. Then what will be the maximum? जो आपका maximum जो सबसे highest value होगा scaling का, वो क्या होगा? It should be more than 540. तो 540 तो क्या कर सकते हैं? 550 भी कर सकते हैं, 600 भी कर सकते हैं। Yes, sir. मान लीजिए 550 करेंगे तो 50-50 डिवाइड करेंगे। अगर 550 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, लेट्स से कि 550 अगर मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 550 में, तो देन जो भी यहाँ पे इतना स्पेस बचा, इसको आप यहाँ पे 0 होगा, लेट्स से दिस विल बी द 0। From 0 and 550,
this space will be divided in equal part. तो 0 550 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट में कितने पार्ट्स बनेंगे? 11 parts. 11 पार्ट्स. 11 पार्ट्स अगर आप करेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो सकता है, लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा, लिखने में बहुत मुश्किलें होंगी. ऑल्सो यू कैन शो इट इज, ऐसा नहीं होगा पार्ट बना दें तो गलत होगा. वो तो और भी अच्छा रहेगा कि आपको डेटा जो है यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा. Yes, sir. By the way, as of now I am writing, I'm taking 600. I'm writing 600. The highest is 600, and this will be, and now we would be dividing each space in equal part. From 0 to 600 we can divide in 6 part, है ना? Yes, sir. It will be easy. Yes, sir. All can divide in 11 part as well. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 parts is there. It will be 500. This will be, आप लोग अपनी जब कॉपी में बनाइएगा तो प्रॉपरली बनाइएगा. अभी मैं एक्सेल पे ग्राफ पे बना रहा हूँ. आई एम नॉट हैविंग द पेन, विद द हेल्प ऑफ माउस आई एम राइटिंग, सो मे बी इट इज नॉट अ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी. देखने में शायद अच्छा ना लग रहा हो, बट समझने की बारी है. तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू आपने शो कर दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम अगर आप शो करें, आपका लेट्स से कि यहाँ पे आप जो बार शो करेंगे ये आप अजय का करेंगे. अजय ओनली ए मैंने लिख दिया अजय का नाम. ओके, उसके बाद आप यहाँ पे अली को शो करें. thereafter दीप्ति, thereafter गीत, thereafter हरी. ये नहीं है ना आपके बुक में? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes. Yes. now we will be making the, अब ये आपका जो एक्सेस है, जो आपका बार है वो रेडी हो चुका है. अब हमें डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है. यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम ऑलरेडी हमने लिख दिया है. ऑलरेडी वी हैव मेंशन्ड द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल्सो वी हैव मेंशन्ड द marks detail. And now which students, how many marks have obtained, we have to showcase on this graph. How we have to showcase? Now we have to make the graph. Let's say Ajay has secured how many marks? 450. 450. 450 कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे मिलेगा? Between 400. Between 400 and 500. बराबर होगा ना करीब, यहाँ पे होगा. Yes, sir. So we would be making the graph 450. Okay. Yes, sir. इसी तरीके से if I talk about the Bali, what is the score of Bali? So 500. 500 के पास. दीप्ति So 300. 300 will be lie at this mark ना. ये थोड़ा सा इक्वली नहीं है, जब आप लोग करिएगा तो स्केल से प्रॉपर्ली इक्वल करिएगा. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. In this way you can draw. In this way you can draw for Fayaz and Geetika and Hari. Okay? Yes, sir. So how you can Yes, sir. represent all these data in this way? The second thing, there is also, let's say कि आपका ये फर्स्ट एग्जामिनेशन, आपका कई सारे एग्जामिनेशंस होते हैं. आपको मैं दो अलग अलग एग्जामिनेशंस की बात करूं. अभी यही डेटा ये कहा गया होता कि दिस स्कोर वाज सिक्योर्ड इन द FA1. इन स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन बच्चों के नाम के बजाय आप सभी का नाम होता और मैं ये लिखता कि these score out of 600, these score have been secured by these children, by these students in the examination number 1 in the FA1. और फिर एक और डेटा मैं देता, फिर उसमें कहता कि सेम वही उन्हीं बच्चों का उतने ही सब्जेक्ट्स में आउट ऑफ 600 ही उन्होंने कुछ और, कोई जरूरी नहीं कि पहले और दूसरे एग्जाम में सेम मार्क्स मिले, ऐसा है? Sir. No, sir. वो
वो दूसरा डेटा मिला दूसरे एग्जामिनेशन का, उसका आप अलग से ग्राफ बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं कि नहीं? बट जब आपका सिंगल ग्राफ रहता है देन यू कैन फाइंड दैट कि व्हिच इज द लीस्ट, व्हिच इज द हाईएस्ट, व्हिच इज हाउ, मतलब कितना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, आप केवल इतना ही जान सकते हैं। बट अगर कंपैरिजन की बात करें, आपको ये पता करना हो कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या गड़बड़ है, कौन सी डेटा कितनी कम है या ज्यादा है, अगर आपको तुलना करना हो, कंपैरिजन करना हो, देन व्हाट यू कैन डू, आप जिन दो डेटा को आपको तुलना करना है, उन दोनों डेटा को सिर्फ एक ही ग्राफ पे आप शो कर दीजिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए। Yes, sir. Getting the answer. How? Let's say कि as of now, I'm sharing another thing. Now I will be showing you all the things in Excel. Let's say कि now I'm writing the name of the children, students. Students में मैंने नाम लिख दिया A, C, D, F, गीतिका एंड हरी। सभी का नाम मैंने ऐसे लिखा है, थोड़ा सा समय की कमी है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके? Yes, sir. Yes, sir. Marks of the in FA1. How many marks was secured? 450, 500, 500, 300, 360, 400, 540. These are the data. What I'm doing? थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं because these are the title. It should be clear. So I have written all the data here. So what we have to do? Now I'm going to, अभी आप सभी को Excel तो दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Put this data on the form of table. Insert. I've selected this data and insert column. There is a many kinds of graph. 2D column, 3D column. Not only the column, but there are many graph. Line graph, pie graph, bar graph, area graph. There are another many types of the bar graph. Yeah, charts are there. In your this book, in your this exercise, you are studying about the how to represent the in bar graph. ये पाई ग्राफ आपका सर्कल फॉर्मेट में होता है, एरिया ग्राफ दूसरी तरह, लाइन ग्राफ आपका डॉटेड फॉर्मेट में होगा, फिर लाइन के थ्रू होगा। तो ये सारी चीजें जब इन फ्यूचर कभी आप बार ग्राफ समझ जाएंगे तो ये भी सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल बार ग्राफ या कॉलम ग्राफ दोनों एक ही चीजें हैं। मैंने यहाँ पे कॉलम ग्राफ में किया और यही डेटा आपका यहाँ पे दिखाई भी पड़ने लगा होगा। Yes, sir. I hope that everybody are getting this data. ग्राफ देखने भी लगा होगा। Yes, sir. हो सकता है ये आपका पूरी तरह ब्लैंक पेज हो तो आपकी ये लाइनिंग ना हो, बट हाँ आप लोग की हिंदी जो है टू रूल कॉपीज है वहां पे भी हो सकता है शो करें। तो ये आपका ये बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे स्केलिंग किया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम है और मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पे बताया गया है कि दिस मीन्स ये क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट्स दैट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन FA1। लेट्स से मैं आपको एक चीजें और दिखाता हूँ। अभी इस टेबल को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है बट फिर भी जल्दी से, ओनली 2 मिनट्स आ रहे। मैं सेम डेटा यहाँ पे कॉपी करता हूँ और फिर ये दूसरे एग्जामिनेशन का डेटा मैं कर दे रहा हूँ। FA1
मान लीजिए नहीं, इसी को एक काम करते हैं यहीं पे, FA1 में आपका ये परफॉर्मेंस रहा, FA2 में कोई दूसरा परफॉर्मेंस, सेम बच्चा है, केवल FA1 FA2 एग्जामिनेशन नेम बदला है और उसमें परफॉर्मेंस कुछ अलग है। ये 500, मैं कुछ भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे डेटा मैंने चेंज किया। अब क्या है, इसको आप अलग करते तो ये दूसरा डेटा बनाते तो स्टूडेंट्स नेम लिखते, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन FA2 आप ऐसा लिखते, ऐसे ही तो था। sir, Yes, sir. एक ही डेटा में दोनों चीजें लिख दिया, नेम वही है, स्टूडेंट्स नेम। अब इसको अगर आपको कभी आपको बार ग्राफ पे शो करना हो, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट? Double bar graph. In this way you have to draw into your copies. Yes, sir. सिर्फ एक ही बच्चे का ये FA1 in blue color, it is represented the marks obtained in FA1, and this color of graph, this color of bar is representing the number, representing the marks obtained in FA2 by the students. A has secured, A ने यहाँ पे क्या किया, ग्रोथ किया है, he has performed well, यहाँ पे परफॉर्मेंस इसकी इंप्रूव हुई है। बट बी की बात करें तो ब्लू से 500 से ये 300 पे आ गया, दैट मींस कि यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है इनकी खराब है, डाउन ग्रोथ। So these are the things बेटा, less than 1 minute the session is going to be end. आपको एक सेशन और भी लूंगा, अब आज ना लेकर के, हो सकता है कल या परसों जब भी समय मिलेगा, आई विल बी टेकिंग द मैथ्स क्लास आपका, और उसके बाद मैं ये सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके एक बार दिखा दूंगा, एंड देयर आफ्टर यू ऑल नीड टू कंप्लीट द एक्सरसाइज। ओके? Yes, sir. इस वजह से दूसरी क्लास है, सो आई कैन नॉट टेक। फिलहाल आपको जो समझ में आएगा आप लोग करने की कोशिश करिएगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको Yes, sir. एक्सरसाइजेस को डिस्कस करूंगा। Yes, sir. आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय। bye, sir. Goodbye. So more than 40 minutes